हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह कोर्स हम थर्मोडायनेमिक्स से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स तक फुल कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स it is the branch of physics which deals with the study of thermal energy into other forms of energy। और वाइस वर्सा। पहली 2-3 वीडियो के अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स की कुछ बेसिक डेफिनेशंस और कुछ बेसिक रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ थर्मल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, या इसका उल्टा कि कोई भी एनर्जी है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे मैकेनिकल एनर्जी है, उसको हम थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ये चीज़ें देखेंगे हम। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा क्लासिकल मैकेनिक्स से कंपेयर करके चलेंगे। जिस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स के जो नियम हैं, जो लॉज हैं, वो एम्पिरिकल लॉज हैं, उसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ हैं वो भी क्या हैं? एम्पिरिकल लॉज हैं। उनका भी कोई प्रूफ नहीं है, यानी कि देयर इज़ नो वे टू प्रूव देम। सो इसको लिख लेते हैं हम। क्लासिकल मैकेनिक्स the laws of thermodynamics are also empirical। empirical मतलब the laws which are based on experimental observations, also empirical। there is no way to prove them, however the results obtained are very accurate। ठीक है, तो अब हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिफाइन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज हीट एंड वर्क। सो पहले हम बेस्ड ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल, so based on microscopic level, heat and work are modes of transfer of energy, they are not forms of energy, they are not forms of energy। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम ये कह सकते हैं हीट इज वर्क एंड वर्क इज हीट। देयर इज नो वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। नाउ वी विल डिफाइन वर्क एंड हीट बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। Microscopic level. On microscopic level, there is a difference between heat and work. In microscopic level, heat is disordered motion
sorry, motion of molecules, and work is ordered motion of molecules. Now we will define unit of heat. SI unit of heat is joule, and CGS or practical unit of heat is calorie. Now we will define 1 calorie. It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius, that is from 14.5 degree to 15.5 degree Celsius. Why is it so? It is because this specific heat of water at temperature 15 degree Celsius is 1 calorie gram inverse Celsius inverse. नाउ स्पेसिफिक हीट को हम आगे जाके डिफाइन करेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है. नाउ अभी हम वर्क एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की के प्रयास करते हैं. एक क्या कि जूल फाउंड that when mechanical work W is converted into heat, Q, हीट को हम Q से डिफाइन करते हैं और वर्क को हम W से डिफाइन करते हैं. द रेशियो ऑफ W and Q is always constant, represented by J, that is W by Q is equal to J और W is equal to QJ. J जो है J is Joule's mechanical equivalent of heat, equivalent of heat. J नोट, एक बात का हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर, J is not a physical quantity but a conversion factor involved when work is converted into heat. Okay, now there is also one note we have to remember it for the numerical problems. 1 calorie is equal to 4.186 joule. We have to remember it. Now we will also define some basic terms.
what is thermodynamic system? Let me change color. Thermodynamic system. A thermodynamic system refers to a certain portion of universe selected for investigation. Okay, a thermodynamic system refers to a certain portion of universe selected for investigation or analysis. Okay, we have defined thermodynamic system. It is a system it is a certain portion of universe selected for investigation or analysis. Okay, now what is surroundings and what is boundary? Let me draw a diagram. Let's suppose this is a system. दिस इज बाउंड्री, इसको हम बाउंड्री कह सकते हैं, वॉल कह सकते हैं या सरफेस कह सकते हैं, और इसके जो बाहर का है वो क्या होगा, सराउंडिंग्स। जैसा कि हम सब जानते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स इज इक्वल टू यूनिवर्स। ओके, नाउ how can we define surroundings and how can we define boundary? Everything outside the system that can influence the behavior of system constitutes the surroundings, and the envelope which encloses a system and separates it from surroundings is called a boundary of the system. तो इसको लिख लेते हैं एक बार, सराउंडिंग्स और बाउंड्री क्या चीज़ है, everything outside the system that can influence the behavior of system constitute the surroundings, and the envelope which encloses a system and separate it from the surroundings is called बाउंड्री कह सकते हैं, वॉल और सरफेस। साधारण भाषा में देखें तो बाउंड्री किसे कहेंगे हम, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसको क्या कहते हैं हम, बाउंड्री कह सकते हैं, वॉल कह सकते हैं। अब जो बाउंड्री है वो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। बाउंड्री कैसी हो सकती है, रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी। फॉर एग्जाम्पल, ए गैस फ्लोइंग थ्रू ए जिगजैग पाइप, वो क्या है, इमेजिनरी है, उसमें जो वॉल है वो क्या है, इमेजिनरी। और एक गैस एनक्लोज इन ए सिलेंडर, वो क्या है, मतलब जो सिलेंडर की जो वॉल है वहाँ पर वो रियल बाउंड्री की तरह एग्जिस्ट करेगी। और जो गैस फ्लोइंग थ्रू ए जिगजैग पाइप है उसमें, क्योंकि गैस क्या है, एक तरह से रैंडम बिहेवियर होता है उसका, तो उसकी जो बाउंड्री है वो एक इमेजिनरी बाउंड्री है, उसको इमेजिनरी बाउंड्री की तरह कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम
कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। फर्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। ए सिस्टम which cannot exchange both energy and matter is called an isolated system. एक ऐसा सिस्टम जो ना तो एनर्जी और मैटर ट्रांसफर करे विद द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। अब जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ज़्यादा मतलब प्रयोग नहीं होगा, उसका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ही ज़्यादा उससे डील करेंगे हम आइसोलेटेड सिस्टम से। दूसरा जो टाइप है वो क्या है, क्लोज सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम को सिस्टम लिख सकते हैं हम, ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी ओनली नॉट मैटर विद द सराउंडिंग्स is called a closed system. Next is open system. ओपन सिस्टम के अंदर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ बोथ मैटर एंड एनर्जी। उसको क्या कहेंगे हम, ओपन सिस्टम। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन है कि ए प्लांट इन ए गार्डन क्या है, ओपन और क्लोज सिस्टम। मैंने बताया कि आइसोलेटेड सिस्टम का यहाँ पर ज़्यादा प्रयोग नहीं है या डील नहीं करेंगे हम आइसोलेटेड सिस्टम से, तो जनरली हम ओपन और क्लोज सिस्टम से ही डील करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ओपन और क्लोज सिस्टम क्या है, प्लांट इन ए गार्डन किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है या क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो अब प्लांट है गार्डन के अंदर, लेट्स सपोज इट इज प्लांट गार्डन के अंदर, तो ये सन से एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, एनर्जी ले रहा है, और सराउंडिंग से CO2 ले रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, मैटर। या सोइल से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, वो क्या है, एक तरह से मैटर ही है। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ क्या है, बोथ एनर्जी भी है और मैटर भी है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ ए ओपन सिस्टम। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि एक सॉफ्ट ड्रिंक प्लेस्ड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर ये क्या है, ओपन और क्लोज सिस्टम में से क्या है ये, किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये। तो जब हम सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक कह सकते हैं हम, तो अब जब सॉफ्ट ड्रिंक को हम रेफ्रिजरेटर के अंदर रखेंगे तो उसमें सिर्फ तो उसको ठंडी होने के लिए रखेंगे तो उसका मास चेंज तो नहीं होता है, तो मैटर नॉट एक्सचेंज, ओनली एनर्जी एक्सचेंज।
तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, क्लोज सिस्टम। तो होपफुली आपको ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम को समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। नाउ वी विल डिफाइन टाइप्स ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री, वॉल और सरफेस। सबसे पहले क्या है, एडियाबैटिक वॉल। ए वॉल विच prevent the exchange of heat is known as adiabatic wall। ओके, और अच्छी तरह डेफिनेशन लिखें इसकी तो हम क्या कहेंगे, ए सरफेस विच प्रिवेंट्स थर्मल इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एडियाबैटिक वॉल। ओके, ए सरफेस विच prevents the thermal interaction between system and surroundings is called an adiabatic wall। और दूसरी टाइप क्या है, डायाथर्मिक वॉल। A surface which allows thermal interaction, यानी कि साधारण भाषा और सिंपल और साधारण भाषा के अंदर हम कहें तो एडियाबैटिक वॉल के अंदर हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में। डायाथर्मिक वॉल के बीच में, डायाथर्मिक वॉल के अंदर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का जो ट्रांसफ़र है वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करते हैं स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको समझने में भी काफ़ी मज़ा आता है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम किसी भी सिस्टम को सोल्व करने के लिए हम उसकी, या मतलब मैकेनिकल सिस्टम को सोल्व करने के लिए हम उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, और वो क्या होती है, F इज इक्वल टू ma। और इस मतलब हर मैकेनिकल सिस्टम की हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। अब उसको सोल्व करने के बाद जो उसका सॉल्यूशन है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द टाइम वेरिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर एसोसिएटेड विद द सिस्टम। यानी कि ये हमारे पास कोई ब्लॉक है और इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है 2 किलोमीटर पर आवर, ये टाइम t0 पर है। मैं पूछता हूँ कि आप इसका टाइम t 5 सेकंड के बाद बताओ कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके इसके पाथ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं या इसकी ट्रैजेक्टरी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इन थर्मोडायनेमिक्स जो स्टेट ऑफ ए सिस्टम है उसके भी कुछ ना कुछ इक्वेशन होनी चाहिए या कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होने चाहिए जिससे हम उसकी कंडीशन या उसकी स्टेट को डिफाइन कर सकें। अब जो वेरिएबल्स हैं या क्वांटिटीज़ हैं वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं उनको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे हम। इन थर्मोडायनेमिक्स
द स्टेट ऑफ ए सिस्टम एट एनी इंस्टेंट represent its condition at that time. It is specified by a set of experimentally कह लें या empirical कह लें, experimentally measured quantities called thermodynamic variables, like pressure, temperature, volume, etc. अब जो थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स हैं, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होता है। थर्मोडाइनमिक वेरिएबल जो हैं वो दो टाइप्स में डिवाइडेड किए हुए हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इंटेंसिव वेरिएबल्स? Let's suppose y be a macroscopic parameter. Let y be a microscopic parameter of a thermodynamic system. ये है हमारा कोई सिस्टम है, थर्मोडाइनमिक सिस्टम, और ये एक माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर है जो इस सिस्टम को स्टडी करने में हमारी मदद कर रहा है। Let's suppose this system is divided into two parts by allowing a partition in the system. So let y1 be the macroscopic parameter of subsystem 1 and y2 be the parameter of subsystem 2. Now the variable is said to be extensive if y is equal to y1 is equal to y2. So we define a extensive variable if macroscopic parameter y is equal to y1 is equal to y2. So those variables of a system in a given state that are independent of its mass and number of particles are called intensive variables. मतलब, or in other words we can define intensive variables as the variables which are independent. देखिए ऐसे याद कर सकते हैं हम, यहाँ पर इन है तो इंडिपेंडेंट of the variables which are independent of its mass and number of particles are called intensive variables. Example: temperature, density, temperature, density, pressure, electric field. अब इसको समझते हैं कि टेम्परेचर जो है इंटेंसिव वेरिएबल कैसे है, प्रेशर है इंटेंसिव वेरिएबल कैसे है। तो ये समझना काफ़ी आसान है। जैसे कोई थर्मोडाइनमिक सिस्टम है, उसका टेम्परेचर T है, तो
अगर मैं इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को टू सब सिस्टम्स के अंदर डिवाइड करता हूँ तो इसका जो टेम्परेचर है वो भी T रहेगा और इसका जो टेम्परेचर है सब सिस्टम 2 का और 1 का जो टेम्परेचर है वो दोनों का सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो y है वो टेम्परेचर है और जो y1 है वो भी T है और y2 है वो भी T है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो क्या है, एक इंटेंसिव वेरिएबल है। इसी तरह से प्रेशर को समझे हम, प्रेशर अगर पार्टीशन लगाने पर जो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल है वो सेम रहता है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटेंसिव वेरिएबल है। इसी तरह हम प्रेशर को समझ सकते हैं, इसको P कर दिया तो प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अब हम एक टाइप और डिफाइन करते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की, जो है क्या है, एक्सटेंसिव वेरिएबल। अब इसके अंदर क्या है कि हम सेम ही मानेंगे कि y जो है मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है, सेम प्रोसीजर रहेगा लेकिन डेफिनेशन थोड़ी अलग है। y है, अब इसको हम पार्टीशन लगा के दो सब सिस्टम के अंदर डिवाइड कर देते हैं, सब सिस्टम 1 और सब सिस्टम 2। नाउ द वेरिएबल इज सेड टू बी एन एक्सटेंसिव वेरिएबल इफ y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, दैट इज वेरिएबल इज एडिटिव इन नेचर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इसका काफ़ी यूज रहेगा। और इन अदर वर्ड्स we can define extensive variable as the variables which are dependent on its mass and number of particles are called extensive variables। एक्चुअल में जो ये डेफिनेशन लिख रहे हैं हम मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को संबोधित करते हुए, ये जो डेफिनेशन है वो यहीं से आई है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। और सिमिलरली इन द सेम वे जो y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू y है, और जो हमने डेफिनेशन लिखी है इंटेंसिव वेरिएबल की इन टर्म्स ऑफ इट्स मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, वो भी इसी से आई है। तो अब जो हमने एक्सटेंसिव वेरिएबल को डिफाइन किया है, किस सेंस में किया है कि जो वेरिएबल्स एडिटिव इन नेचर हैं। तो एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल की मदद से मास वॉल्यूम एंट्रोपी एक्सेट्रा। अभी देखते हैं कि सपोज कीजिए कि हमारे पास जो y मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है वो क्या है, वॉल्यूम है जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है, और ये हमारे पास एक कोई सिस्टम है। अभी इस सिस्टम को हम पार्टीशन लगा के दो सब सिस्टम के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो हम कॉमन सेंस से यह बता सकते हैं कि इसका जब पार्टीशन लगाएंगे तो वॉल्यूम जो है सेपरेट हो जाएगा, ये वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V2 हो जाएगा, और V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी कि जो वॉल्यूम है वो एडिटिव इन नेचर है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वॉल्यूम जो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव वेरिएबल है। इन द सिमिलर मैनर मास को भी हम इसी तरह, अगर मास भी डिवाइड एक तरह से, मास कैन बी रिटन एज m1 प्लस m2, सम ऑफ m1 प्लस m2। अगर हम y एज m लेते हैं तो इसको भी हम m1 प्लस m2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह हम एंट्रोपी को भी लिख सकते हैं। एंट्रोपी हमने डिफाइन नहीं किया है अभी, इसलिए हम उसको बाद में समझेंगे, लेकिन एंट्रोपी एडिटिव नेचर है। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमको बहुत ज़्यादा काम होगा, इससे हम गिब्स पैराडॉक्स वगैरह देखेंगे, वो भी पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो अभी हम क्या पढ़ते हैं,
लेट्स सपोज एफ एंड जी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल्स के टॉपिक को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट एफ एंड जी आर टू इंटेंसिव वेरिएबल्स। जर्नलाइज करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो जो इनका सम है वो भी क्या होगा, इंटेंसिव। जो इनका प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, इंटेंसिव। और जो इनका डिवीजन है वो भी क्या होगा, इंटेंसिव। इनका डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर वो भी क्या होगा, इंटेंसिव। नाउ वी डिफाइन लेट कैपिटल F and कैपिटल G are two extensive variables। तो F प्लस G वो क्या होगा, एक्सटेंसिव। F इंटू G वो क्या होगा, एक्सटेंसिव। लेकिन F बाई G वो क्या होगा, इंटेंसिव। हाउ, लेट्स अंडरस्टैंड। मास इज ए extensive variable, volume is a extensive variable, mass upon volume is an intensive variable. So rho is an intensive variable, mass upon volume is density actually. So in this way we can understand that F by G is an intensive variable. We have to note this point very carefully. In the similar manner, del F by del G is also a intensive variable. Okay, now we will take combination of both. Let's suppose F is intensive variable and capital F is extensive variable, then we will show their combination. Then क्या होगा कि अगर कोई एक इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का प्रोडक्ट लेते हैं वो भी क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा। डिवीजन लेते हैं वो भी क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा। डिफरेंशिएशन करते हैं वो भी क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा। नाउ एक बात जो है वो याद करने की है यहाँ पर कि इसको नोट में लिख लें हम कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल इज या हैज़ डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ये इम्पोर्टेंट है, कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमको मदद करेगा। फॉर एग्जांपल प्रेशर इंटेंसिव वेरिएबल है, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव वेरिएबल। तो इन दोनों का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर आएगा, ml² T-2, किसका, एनर्जी का। ये बात हमको याद करनी है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आगे कुछ वीडियोस में और पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो थैंक यू।